Hello everyone, welcome once again in lecture number 24 of our unit number 12, aldehydes, ketones and carboxylic acids. In last sessions, we start with the preparations of a carboxylic acid or the method of the preparations of carboxylic acid. So in last sessions, we completed the first portion of our NCERT textbooks from primary alcohol and aldehydes. Mind well, primary alcohols and aldehydes, so at that time a strong oxidizing agent such as acidic or basic KMnO4, neutral KMnO4 is also used, acidic K2Cr2O7 or CrO3H2SO4, which is called as the John's reagents. These are the used, okay. And in case of aldehyde, we know that it's easily oxidized to corresponding carboxylic acid, even with a mild oxidizing agent such as Tollens reagent or Fehling solution or bromine water, right? Now our next session is at 12.7.2. So it's from alkyl benzene. Mind well, it's a benzene group, an alkyl benzene group. Okay, so aromatic acids. Here the purpose is aromatic acids are obtained by a vigorous oxidations of alkyl benzene with a oxidizing agent such as acidic or basic KMnO4, acidic K2Cr2O7. We know that K2Cr2O7 and H2SO4, when they are mixed with each other, so it's converted into chromic acid, or even though dilute nitric acid is also used. So why these vigorous oxidations can take place? Because higher the reactivity of the benzylic hydrogen, because we know that in the case of this alkyl benzene we definitely observed a benzylic hydrogen, and this benzylic hydrogens having a very good reactivity due to the aromatic ring end, okay, so as compared to other hydrogens on the alkyl chain. So as a result, here what is the product? All the alkyl benzenes give the same COOH, means benzoic acid. Okay, once again. So in other words, we says that during this oxidations, right? The aromatic nucleus remains intact, but the entire side chain is oxidized to a COOH group, irrespective of the length of the कार्बन चेन. जैसे भी बड़ी कोई भी कार्बन चेन क्यों न हो, यहाँ पे जो एरोमेटिक पोर्शन है उसको कुछ भी नहीं होगा. जो भी होगा वो आपके पास जो साइड चेन है, कितनी बड़ी लंबी न क्यों न हो, उसके ऊपर ही रिएक्शंस हो जाएगा, राइट? The COOH group formed is always added to the aromatic ring, and the position of the COOH group indicates that the positions of the original side chain in the starting arene compound. For example, methyl group, primary, secondary alkyl chain which contain the reactive benzylic hydrogen are oxidized to carboxyl group. देखिए, मैं इसमें पहले आपको एग्जांपल्स देना चाहता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास टोल्यूइन है. देखिए, मेरे पास क्या है? टोल्यूइन है, और मिथाइल बेंजीन भी हम बोल सकते हैं. तो अब देखिए, इसमें कितने हैं? 3 बेंजाइलिक हाइड्रोजन है. देखिए आप, 3 बेंजाइलिक हाइड्रोजन है यहाँ पे. देखिए, ये जो है बेंजाइलिक, क्योंकि बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच विद एरोमेटिक रिंग, सो ऑल द, और वो ज्यादा एक्टिव होते हैं रिंग की वजह से. आपको मालूम है हाइपर कॉन्जुगेशन का भी यहाँ पे पूरा जो प्रोसेस है ये भी चल रहा है. सो इसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा अपनी तरह से वो एक्टिव होने की वजह से when it's oxidized in presence of strong oxidizing agent,
ओके। सो फर्स्ट वी गेट अ बेंजोइक एसिड। मैंने क्या किया आपको बताया, यहाँ पे पहले बेंजोइक एसिड यहाँ पे बेंजोइक एसिड बन गया था, लेकिन ये जो अल्कलाइन मीडिया है तो उसने क्या कर दिया, उसका सॉल्ट बना दिया है। तो वी नो दैट इट्स कॉल्ड एज एन पोटेशियम बेंजोएट। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसका न्यूट्रलाइजेशन करना पड़ेगा विद द एसिडिक H2SO4 और डाइल्यूट H2SO4। तो क्या हो जाएगा, तो उसका रिस्पेक्टिव मुझे COOH यहाँ पे मिल गया है। तो मुझे पता है क्योंकि कोई भी अल्काइल बेंजीन हो वो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट तो बेंजोइक एसिड ही देगा। देखिए मैं पहले आपको थोड़ा एग्जांपल्स देना चाहता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि हम क्या करना चाहते हैं। देखिए मेरे पास है दूसरा एक मैं एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको क्वाट करना चाहता हूं, वो है इथाइल बेंजीन CH2CH3। We know that the name of this compound is ethyl benzene. How many? Because here the mind well, it's a primary alkyl chain है, ये प्राइमरी है, हमें मालूम है अल्काइल चेन है, लेकिन उसके पास 2 बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, 2 बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 2, ये 2 है क्योंकि रिंग के साथ जो जुड़े हुए हैं वही होते हैं। फाइन। सो व्हेन इट्स रिएक्ट्स विद द सेम वे इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 KOH, so we get a product is like that COO minus K plus. Same way potassium benzoate, and when hydrolysis gives same benzoic acid। यहाँ पे कुछ ऐसा सोचना ही नहीं, चेन कितनी भी लंबी हो लेकिन एरोमेटिक को इंटैक्ट, इसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं होगा, जो भी होगा वो बेंजाइलिक ग्रुप की वजह से होगा। तो उसका ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये हम कन्वर्ट कर देंगे उसको, सभी जगह पे मुझे बेंजोइक एसिड ही मिलेगा, बेंजोइक एसिड। फिर भी हम देख रहे हैं कई बार ऐसा भी हो सकता है। देखिए मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल में डाला हुआ है। अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़े लंबी चेन ले रहा हूँ, CH2CH3। मुझे मालूम है उसका नाम क्या है, एन प्रोपाइल बेंजीन है। This is N-propyl benzene, and we know that this N-propyl benzene is a primary alkyl chain है, but this primary alkyl chain having a 2 benzylic hydrogen उसमें पड़े हुए हैं। देखिए आप यहाँ पे, अच्छा उसका जैसे हम यहाँ से उसी तरह से रिएक्शंस कराएंगे तो मुझे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये बेंजाइलिक का ही एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे भी रिएक्शन यहाँ पे भी होगा, बेंजोइक एसिड बन गया है, लेकिन there is a presence of KOH, so they neutralize with the benzoic acid and converts into potassium benzoate, and now the hydrolysis with the help of dilute H2SO4, so it's converted into what? So it's converted into benzoic acid. तो मैंने क्या बोला था, ड्यूरिंग these oxidations the aromatic nucleus remain intact but entire side chain is oxidized to a COOH group irrespective of the length of the carbon chain. ठीक है, so COOH group formed is always attached to the aromatic ring, and the positions of the COOH group indicates the positions of the original side chain in the starting ring. कहाँ पे भी होगा तो आपको पता चल जाएगा। देखिए मैं एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर यहाँ पे करना चाहता हूँ। मेरा एक जो एग्जांपल है वो आप देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ। दिस इज मेरे पास है CH3 है और CH3 है, राइट। इसका नाम हमें मालूम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। देखिए अभी मैं थोड़ा उसमें कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लेना चाहता हूँ। आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, हमें पता है ये सेकेंडरी अल्काइल चेन है, सेकेंडरी, ये प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी अल्काइल चेन है, लेकिन इसके पास ओनली 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, ओनली 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, हमें पता है। कोई बात नहीं, जिस तरह से हम यहाँ से जो रिएक्शंस करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, ये तो होगा तो यही COO माइनस K प्लस ही होगा। फिर उसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो उसका जो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा वो बेंजोइक एसिड ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? जो ये मैंने आपको बताया था आइसोप्रोपाइल बेंजीन का, मैंने जो बताया है, जैसे मेरे पास टर्शरी ब्यूटाइल, मैं एक और बता देता हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है आप देखिए, मैं क्या बताना चाहता हूँ। मेरे पास टर्शरी है, दिस इज C, सेम वे CH3 एंड CH3, राइट। ये इसका जो नाम है हमें मालूम है टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन है, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। नाउ दिस टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन, वी नो दैट इट्स अ टर्शरी अल्काइल चेन है, टर्शरी अल्काइल चेन है, और उसके पास
कोई भी बेंजोइल, नो बेंजाइलिक हाइड्रोजन, नो बेंजाइलिक हाइड्रोजन, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो रिएक्शंस हम करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी ये रिएक्शंस हो रहा है वो बेंजाइलिक हाइड्रोजन की वजह से ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वजह ही नहीं रही है अभी। तो इसका मतलब ये हो गया, हम इसका रिएक्शंस ऐसे कराएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, नो रिएक्शंस कैन टेक प्लेस। सो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, देखो यहाँ पे मैंने मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ था, फिर मैंने प्राइमरी जैसे और सेकेंडरी अल्काइल चेन विथ कंटेन द रिएक्टिव बेंजाइलिक हाइड्रोजन, सो दे आर ऑक्सीडाइज्ड टू द कार्बोक्सिल ग्रुप, बट व्हाइल इन द केस ऑफ दिस tertiary alkyl group or tertiary alkyl chain which do not contain the benzylic hydrogen, so which are not oxidized। ठीक है, आपको पता चल गया कि यहाँ पे कोई रिएक्शंस नहीं होगा। जो भी रिएक्शंस यहाँ पे हम देख रहे हैं उसकी जो वजह है वो क्या है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन की वजह से ये चल रहा है। ठीक है, फाइन। अभी मैं थोड़ा क्योंकि आपकी बुक से तो मैं ज्यादा ही जाऊंगा, आपको पता है, क्योंकि मैं थोड़ा इसको डेप्थ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरा जो मिशन है वो आपके साथ ही, आपका मिशन है वो भी मेरा मिशन है। जैसे गुजसेट की एग्जामिनेशन है या आपका JEE है या नीट है, तो उसी तरह से हम यहाँ पे सोच सकते हैं। अभी देखिए, अभी मैं इसमें एक और आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं। क्या होगा, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ electron withdrawing groups in benzene ring, राइट। तो जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम डालेंगे बेंजीन रिंग में, तो वो क्या करेगा, which increases the reactivity of benzylic हाइड्रोजन की वो जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा कर देगा। सो इट मीन्स दैट, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, मैं आपको एक एग्जांपल ही दिखा रहा हूं। जैसे देखिए मेरे पास क्या है यहाँ पे देखिए, आप टोल्यूइन है, मैंने अभी भी मैंने खत्म किया था। जैसे मैं इसका रिएक्शंस करवा रहा हूँ किसके साथ, KMnO4 KOH, राइट, और उसका थोड़ा डेल्टा टेम्परेचर देना पड़ेगा और फिर मुझे डाइल्यूट H2SO4 से जाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे रिएक्शंस में मुझे क्या मिलेगा, सबको पता है, बेंजोइक एसिड ही मिलेगा सर जी। लेकिन जो मैं टोल्यूइन की कंपैरिजन जैसे मैंने यहाँ पे डाला हुआ है NO2, तो अभी ये टोल्यूइन नहीं है, अभी क्या है, पैरानाइट्रोटोल्यूइन हो गया है। सो व्हेन दिस पैरानाइट्रोटोल्यूइन, वी नो दैट दिस नाइट्रो इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो खींचेगा, तो उसकी इफेक्ट पूरी बेंजीन रिंग से होके यहाँ पे आएगी और इसके जो बेंजाइलिक हाइड्रोजन है वो भी खींचाव में आ जाएंगे, तो ज्यादा रिलीज हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन वो फास्ट होगा, यानी विच इंक्रीज द रिएक्टिविटी। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे आपने देखा, मैं कंपैरिजन दिखा रहा हूं कि मेरे पास टोलिन है और पैरानाइट्रोटोलिन है, तो इसका मतलब इजीली ऑक्सीडाइज कौन होगा, तो ये पैरानाइट्रोटोलिन इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो आपको वाइस वर्सा भी पता चल गया, वाइस वर्सा आपको पता चल गया। जैसे मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो कम कर देंगे रिएक्टिविटी, क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ओके, कई बच्चे ये सभी क्वेश्चंस मुझे पूछ रहे हैं कि सर जी ये तो ठीक है, आपने बताया हुआ है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इफ देयर आर 2 or more अल्काइल ग्रुप्स, 2 या ज्यादा अल्काइल ग्रुप है, तो ईच अल्काइल चेन इज ऑक्सीडाइज्ड टू COOH। जैसे मेरे पास, मैं दिखा रहा हूं आपको, मेरे पास है ना, ये एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम आपको सभी को पता है। मेरे पास 2 मिथाइल ग्रुप है, कोई बात नहीं, हमारा जो एजेंडा है, आप एजेंडा एक बार देख लीजिए। तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन हम कराएंगे, किसके साथ कराएंगे, KMnO4 के साथ, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, राइट। दूसरा मेरा स्टेप्स क्या है कि उसके बाद मुझे न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा डाइल्यूट H2SO4 से। तो जो भी आपके पास CH3 जहां भी अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, यानी 6 आपके पास क्या है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, यानी इसको 6 नेसेंट ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, 6 nascent oxygen is required and now you get a product is COOH। हमें मालूम है इसका नाम क्या है, थैलिक एसिड है, राइट। किसको थैलिक एसिड बोलते हैं, 2 COOH एरोमेटिक रिंग में
बगल बगल में यानी ऑर्थो पोजीशन में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड। तो इस तरह से थैलिक एसिड भी हमें मिल सकता है, ठीक है। जैसे मेरे पास पेराजाइलिन है, देखिए कई बार तो ऐसा भी हम देखा सकते हैं कि जैसे पेराजाइलिन है मेरे पास, ये ऑर्थोजाइलिन नहीं है, पेराजाइलिन है, कोई बात नहीं, हमें तो मालूम ही है पेराजाइलिन में क्या होता है। सो पेराजाइलिन सेम वे 6 नेशेंट ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, इस तरह से ही हम जा सकते हैं। तो कैसे टॉरथैलिक एसिड या कुछ हम बना सकते हैं ना, इसके बारे में यहाँ पे समझाया गया है। इसका नाम हमें मालूम है, टॉरथैलिक एसिड, टॉरथैलिक एसिड, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो गए। बिल्कुल सही, आपको पता चल गया। मेरे पास ऑर्थोजाइलिन हो या पेराजाइलिन हो, ज्यादा हो, अगर आपके पास 3 CH3 हो, 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन हो तो भी यही होगा। इसका जो बेस है वो आप एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे मैं एक और थोड़ी बात करना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन मैं ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे मेरे पास अल्कीन हो ना, अल्कीन, यहाँ पे तो जैसे मेरा टाइटल मैंने आपको क्या बताया था कि फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, लेकिन ज्यादातर हम देख रहे हैं कि अल्कीन, अल्काइल बेंजीन या अल्कीन दोनों में यही होता है। द सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू ऑक्सीडाइज सुटेबली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स टू कॉरस्पॉन्डिंग और टू यील्ड अ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे इसका मैंने आपको बता रहा हूँ, खाली आपको समझ में आ जाएगा। K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ जैसे मैं इसका रिएक्शंस कराऊंगा तो विच इज कन्वर्टेड इनटू 2 मोल ऑफ RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड में वो चला जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको दिखा दूं, जैसे मेरे पास है CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। We know that the name of this IUPAC name of this compound is but2ene. So now this but2ene is reacted and is converted into acetic acid, right? लेकिन ये आपके अभी सिलेबस में नहीं डाला हुआ है, लेकिन कई बार जो एग्जामिनेशंस होती है जैसे JEE की, नीट की, तो उसमें वो इसकी डेप्थ में वो आपको यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पे एक जो मेथड आपको बताई थी वो मैंने यहाँ पे आपको समझाई है। अभी नेक्स्ट वन, नंबर 3 मेथड अकॉर्डिंग टू अवर टेक्स्ट बुक, जो हमें अभी दिखाया गया है हमारी टेक्स्ट बुक में, वो हमें बताया है फ्रॉम नाइट्राइल्स। हमें पता है नाइट्राइल्स यानी साइनाइड एंड एमाइड एंड एमाइड्स। तो हमें नाइट्राइल और एमाइड्स में थे, हमें कुछ यहाँ पे बनाना है, राइट? क्लियर? फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स में हमें कुछ यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशंस करेंगे। आप एक बार अच्छी तरह से देखिए मैं किस तरह से मैं यहाँ से इसको ले जा रहा हूं। मेरे पास है ना R है, C है, ट्रिपल बॉन्ड N है, राइट? नाइट्राइल्स आर फर्स्ट हाइड्रोलाइज्ड। जैसे मैं यहाँ एसिडिक और बेसिक मीडिया ले रहा हूं, देखिए H और OH कोई भी ले सकते हैं आप, राइट? तो वो क्या होगा, फर्स्ट वो एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, एमाइड में। दिस इज कॉल्ड एज एन एसिड एमाइड। ये मैंने क्या बताया था, अल्केन नाइट्राइल, अल्केन नाइट्राइल, राइट? फिर ये जो आपका एमाइड है, आपका एमाइड, उसका मैं रिएक्शंस, राइट, इसका मैं रिएक्शंस वाटर के साथ कराऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक मीडिया। So it's converted into what? So it's converted into carboxylic acid, okay, and release of ammonia. यहाँ एमोनिया की एक स्मेल है जो है टिपिकल स्मेल, इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल वो आपको यहाँ पे आएगी। तो ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह से मिल सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वंस अगेन नाइट्राइल्स आर फर्स्ट हाइड्रोलाइज्ड टू एसिड एमाइड एंड देन दिस एसिड एमाइड इज कन्वर्टेड इनटू एसिड इन प्रेजेंस ऑफ बॉइलिंग मिनरल एसिड्स और अल्कलीज। यानी यहाँ है ना, मैंने माइल्ड कंडीशन यूज की है, लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा एग्रेसिव। अगर आपको यहाँ पे रुक जाना है तो आप माइल्ड यूज करिए, लेकिन अब आप बॉइलिंग मिनरल एसिड्स या अल्कलीज यूज करेंगे बिकॉज इट एक्ट एज ए catalyst, so it's converted into what? So it's converted into carboxylic acid. Fine? अगर देखिए अभी मैं आपको यहाँ पे ऐसा कुछ दिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके जा रहा हूँ। जैसे मेरे पास ये CH3C है, इसका नाम हमें मालूम है, इसका नाम है, कई नाम है इसके। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एसीटोनाइट्राइल,
कई बार बोल रहे हैं इथेन नाइट्राइल, कई बार ऐसा बोल रहे हैं साइनोमीथेन, कई बार बोल रहे हैं मिथाइल साइनेट, सब एक ही है, राइट। इसका मैंने रिएक्शंस देखिए मैं यहाँ किस तरह से करा हूं। मैंने यहाँ पे डाइल्यूट NaOH लिया है, डाइल्यूट NaOH, so it's converted into what? So first is converted into amide, right? So उसका किस में कन्वर्ट हो गया? इथेनेमाइड में कन्वर्ट हो गया, इथेनेमाइड। Okay, now this इथेनेमाइड is reacted with a NaOH, but ये डाइल्यूट नहीं है, ये अभी एग्रेसिव मैंने यूज किया हुआ है। So it's converted into what? CH3COOH में चला जाएगा ना, लेकिन ये NaOH है तो उसके साथ सॉल्ट बना देगा और एमोनिया का रिलीज हो जाएगा। सो वी गेट अ प्रोडक्ट इज सोडियम एसीटेट। फिर उसका मैं यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन कर दूंगा तो हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया? जैसे मैं एक और रिएक्शंस आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, राइट। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे है मेरे पास C�BN, यानी मेरे पास है बेंजोनाइट्राइल ग्रुप है, बेंजोनाइट्राइल ग्रुप है। अभी जो मेरा बेंजोनाइट्राइल है, when it reacts with a water in presence of what? डाइल्यूट मैंने यहाँ पे डाला हुआ है HCl, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? बेंजेमाइड मिलेगा, C डबल बॉन्डो NH2। दिस इज नथिंग बट इट्स अ बेंजेमाइड। Now this benzamide, it reacts with a dilute hydrochloric acid, so it's converted into benzoic acid, and ammonium chloride is released. So here first NH3 is evolved when alkali is used, while NH4 plus is evolved when with an acid. अगर हम एसिड का यूज करेंगे तो NH4Cl आएगा, अगर हम एमोनिया का यूज करेंगे यानी मीन्स वेन अल्कली यूज करेंगे तो एमोनिया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एमोनिया क्यों आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे बेस डाला हुआ है NH4Cl ड्यू टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। सो माइल्ड कंडीशंस आर यूज्ड टू स्टॉप द रिएक्शंस एट द एमाइड स्टेज। जैसे मैंने साइनाइड का H2O के साथ मैंने जो रिएक्शंस कराया हुआ था, मुझे एमाइड में रुक जाना है तो मुझे कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करूंगा। अगर मेरे पास साइनाइड है तो मैं डिसोलिना कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में यूज करूंगा तो वो एमाइड तक रुक जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया मैं क्या बात करना चाहता था। तो ये जो प्रोसेस है आपको यहाँ पे दिखाई गई है फ्रॉम नाइट्राइल्स और एमाइड्स। देखिए एक और प्रोसेस से भी ये साइनाइड या नाइट्राइल्स मिल सकता है, लेकिन हमें पता है कि अल्काइल नाइट्राइल्स और साइनाइड्स नीडेड फॉर द पर्पस कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड्स बाय ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक KCN। जो हमने KCN का हेलो अल्केन में देखा हुआ था, पहले हम अल्कोहल है उसको हैलाइड में ले जाएंगे और इसका साइनाइड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी यहाँ पे हो सकता है, रिएक्शंस यहाँ पे हम डाल सकते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है वो है हमारा फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स। अभी इस तरह से ही हम फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी ये रिएक्शंस है वो हम बता सकते हैं, लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करेंगे, ठीक है।